Hello everyone. Today we'll be starting with a new topic, that is nutrition and nutrients. When we are talking about nutrition and nutrients, part of the nutrition topic has already been done in your plant nutrition topic. What today we'll be covering is the part from nutrition in animals as well as nutrition in humans. Again, there is no difference between nutrition in animal and nutrition in human. Both are the same. The only difference is type of food. So we are not studying them under separate headings as it is given in your syllabus, but we will be studying in a single topic, nutrition and nutrients. So again, what is nutrition? Now this is your pre as well as mains question. What is nutrition? It is a process by which organism takes food and utilize it. It is called as nutrition. So nutrition is a process through which organisms intake food, that is they eat food, consume food and utilize it. That means they digest and utilize that food for body growth and development. Nutrition provides energy for various activities and body functions. So why nutrition is important for us? Because it is essential, because it provides us with energy for various activities in our body, such as for doing work we require energy, and that energy is provided by energy rich food from our diet, such as carbohydrate, fat, protein. To fight diseases we require disease fighting nutrients such as minerals and vitamin. If you remember, deficiency of vitamins and minerals causes deficiency disease. So nutrition is essential for keeping our body healthy as well as to perform body activities or our body functions. Now nutrition is generally of two types. Hopefully you remember autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Again, what do you understand by autotrophic nutrition? Mode of nutrition in which organisms prepare their own food. So autotrophic mode of nutrition means here organisms are going to prepare their own food, and those organisms are considered as heterotrophs. Organisms preparing their own food are known as, autotrophs. Organisms preparing their own food is known as autotroph. Next, it is mainly expedited by plants and algae, also known as primary producers. So who perform autotrophic nutrition or who are autotrophs? These are usually plants and algae, and they are also known as primary producer. ये हमारे लिए एक प्री क्वेश्चन बन गया. हम प्राइमरी प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्लांट और एल्गे को कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, the process by which they produce their own food is known as photosynthesis. तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के जरिए ही प्लांट क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. होपफुली यू रिमेंबर द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोक्योर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता यह है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और तरीके से खुद अपना खाना नहीं बना सकता है, सो व्हाट दे डू इज दे प्रोक्योर इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स और सम अदर मेथड. अगर कहीं और से खाना प्रोक्योर कर रहे हो और अपने बॉडी में खाना प्रिपेयर नहीं कर रहे, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अगेन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स. प्लस हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म का एक और भी नाम है, हम उन्हें कहते हैं कंज्यूमर. कंज्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट और एल्गे या फिर कह सकते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल. आगे बढ़ेंगे. ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स एंड फ्यू एल्गे फॉलो द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक, तो हेटरोट्रॉफिक मोड कौन शो करता है? एल्गे और प्लांट के अलावा जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, इट कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू. जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये फर्दर सबडिवाइड हो जाती है 4 सब टाइप्स में. ओके, सो द 4 सब टाइप्स ऑफ योर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर हेटरोट्रॉफ्स एक एक करके देखेंगे. डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन या फिर पैरासाइट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर होलोजोइक्स. So there are 4 different type of nutrition method या फिर 4 different types of heterotrophs. एक एक करके डील करेंगे. पहले हम डील करेंगे decomposers. Who are decomposers? In this mode, organisms depend on dead and decaying organic matter for nutrition.
डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, गली सड़ी चीजों को, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उसी डिकम्पोजिशन के दौरान वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। तो इस वजह से इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑर्गेनिज्म में शो होता है? इट इज यूजुअली सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। तो किसमें शो होता है? ये बैक्टीरिया और फंगस में शो होगा। यही क्या करते हैं, चीजों को गलाते हैं, चाहे वो पेड़ या फिर कोई घास वगैरह देख लीजिए, जब मर जाता है कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, गल जाता है और मर जाता है। खाने पीने की चीजें भी अगर हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बासी हो जाता है, बासी होने के बाद वो स्मेल करने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करने लगा है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो ऑर्गेनिजम्स इस मोड को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक एंड ऑर्गेनिज्म इज सैप्रोफाइट्स। देखते हैं इसके बारे में। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बिफोर इंजेशन ऑफ फूड। दैट मीन्स यहां पे होता यह है, खाना पहले पचता है, उसके बाद खाना बॉडी के अंदर एंटर होगा। सो डाइजेशन पहले होगा, उसके बाद इंजेशन। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हम पहले खाने को इंजेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, पचाते हैं। लेकिन सैप्रोफाइट्स में उल्टा है, पहले खाने को पचाते हैं, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं। It also deals with intake of dead organic matter as food source. तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक चीज है पहले वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद इंजेस्ट, और दूसरी चीज है वो गली सड़ी चीजों को कंज्यूम करते हैं। अब एक डाउट आ सकता है कि ये खाने को पहले कैसे पचाते हैं, फिर बाद में कैसे इंजेस्ट करते हैं? हम कैसे हमारी बॉडी में खाने को पचाते हैं? खाना पहले हमारी बॉडी में इंटेक हो जाता है, उसके बाद खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हम जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह रिलीज करते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है और बॉडी के अंदर ही काम करती है। लेकिन सैप्रोफाइट में होता यह है, जब वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं वो बॉडी के बाहर ही रिलीज कर देते हैं, बॉडी के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करते, बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। अब क्योंकि जूसेस बॉडी के बाहर रिलीज हुई हैं तो खाना भी बॉडी के बाहर ही पच जाता है। एक बार डाइजेस्ट हो जाने के बाद खाने के वो बाद में क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। देखते हैं किसमें शो होता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज यूजुअली सीन इन फंगस एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर ये फंगस में शो होता है, जैसे ये मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक, उनमें शो होता है। उसके अलावा अगर किसी में शो होता है तो कुछ प्रोटोजोआन से उनमें शो होता है, लेकिन अगेन रेयर केस सिनेरियो, मैक्सिमम केसेस में कहां पे शो होगा, फंगस में ही शो होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिजम्स इसे शो करते हैं हम उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। देखते हैं इसके बारे में। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन होस्ट बीइंग फॉर रेडिली अवेलेबल फूड। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनिज्म खुद खाना प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोक्योर नहीं करता है, ये होस्ट की बॉडी या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या करता है, रेडीमेड फूड क्या करता है, चुराता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टेपवर्म या फिर प्लास्मोडियम या फिर एमीबा। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब होता यह है कि हम क्या करते हैं, खाना कंज्यूम करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं और सारे के सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा देते हैं, ब्लड में पहुंचा देते हैं। ठीक, अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मौजूद है। अब अगर कोई पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में मौजूद है, अब वो क्या करेगा, वहीं से सारा का सारा रेडीमेड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस न्यूट्रिशन मेथड को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे पैरासाइट, और वो कहां से खाना चुरा रहा है, हमारी बॉडी से, तो हम उसके लिए बन जाएंगे होस्ट। इसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रेडीमेड फूड चुरा रहा है। एग्जाम्पल्स हम याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या रहेगा पैरासाइट के लिए, टेपवर्म, प्लास्मोडियम एंड एमीबा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या है? In this type of nutrition, digestion of food follows after the ingestion of food. Follows का spelling यहाँ पे गलत है, FOLLOWS. So digestion of food follows after ingestion of food.
मीनिंग इज खाने को पहले इंजेस्ट करा जाता है, फिर उसको पचाया जाता है। इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर। दिस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑलमोस्ट सैप्रोफिटिक का ऑपोजिट है। सैप्रोफिट में पहले क्या होता है? डाइजेशन, फिर इंजेशन। लेकिन होलोजोइक में क्या हो रहा है? पहले खाने को इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। एनीवेज, ये किस में शो होता है? हम और आप में शो होता है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल में यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेजेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। होपफुली सबको ये पता होगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल जानकारी के लिए, इंजेशन क्या है? इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, जो कि हमारे माउथ में होता है। डाइजेशन का मतलब क्या है? खाने को ब्रेक डाउन करना, पचाना। शुरुआत इसकी होती है माउथ से, खत्म कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टिव वाले सिस्टम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो खाना वगैरह डाइजेस्ट हो गया है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ये कहाँ होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स की तरफ एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। खाना वगैरह पच जाने के बाद जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट बच गया है, उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। तो ये जो स्टेजेस हैं, इन्हें हम याद रखेंगे फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन। एक एक स्टेप, पहला फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, थर्ड फेज क्या है, इन्हें हम याद रखेंगे। ठीक। सो दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड वेरियस फेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स इन फूड्स essential to life and health, providing us with energy, building blocks for repair and growth, and substances necessary to regulate chemical processes. Nutrients क्या है? ये माइन्यूट कंपाउंड्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे खाने में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हेल्थ को ये क्या कहते हैं? मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर डूइंग वर्क। साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है। जैसे कि प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में टिश्यू रिपेयर में और बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लस these are also substances that help in regulating chemical processes, जैसे मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये हमारी बॉडी के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। There are 6 major nutrients, 6 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर फैट्स, proteins, vitamin, mineral and water. There are 6 type of nutrients. Again, कुछ लोग बोल रहे हो सर रफेज कहाँ गया? रफेज इज पार्ट ऑफ फूड, खाने में मौजूद है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट वो है जो खाने में होता है और बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद यूटिलाइज होता है। रफेज खाने में जरूर होता है, लेकिन वो एक्सक्रीशन के दौरान रिमूव हो जाता है, वो यूटिलाइज नहीं करा जाता। तो रफेज इज नॉट पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स, इट इज पार्ट ऑफ फूड। बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखेंगे न्यूट्रिएंट में यही 6 आएंगे, और जो रफेज है वो फूड में आएगा, इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। सो दिस इज न्यूट्रिएंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हम प्री के लिए याद रखेंगे। अब एक एक करके डील करते हैं एक एक न्यूट्रिएंट को। So we'll start with first nutrient, carbohydrate. Carbohydrate देखते हैं। They are sweet in taste, also known as sugar and saccharide. अब क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? शुगर या फिर सैकराइड भी कहते हैं। ये हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। They get into the blood during absorption and provide fast energy. जो न्यूट्रिशन प्रोसेस, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन है, उसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान ये हमारे ब्लड में एंटर होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद ये हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करते हैं? फास्ट, तेजी से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो इट इज अ एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट, most nutritionists agree that 55 to 65% of our diet should be carbohydrate.
जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो एग्री करते हैं या फिर मानते हैं कि हमारे खाने में लगभग 55 से लेकर 65% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि आसानी से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इजी एनर्जी सोर्स है, प्लस इजीली डाइजेस्टिबल भी है। तो इस वजह से जो लोग फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर सोर्स। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो फिर उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट कम होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसकी बॉडी में या फिर उसके डाइट में 55 to 65% ऑफ इट्स फूड शुड बी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इसी से हमारी बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्लांट लाइफ। तो इसे प्रोड्यूस कौन करता है? प्लांट लाइफ इसे प्रोवाइड करती है या फिर हमें प्लांट से सोर्स करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। एंड लगभग 6 से 11 सर्विंग ए डे, दिन में लगभग 6 से 11 सर्विंग। हम सर्विंग की जब हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं, थाली भर के खाने की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो थोड़ा थोड़ा करके 6 to 11 सर्विंग्स लेनी चाहिए। इससे होता क्या, ब्लड में शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है और डायबिटीज होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के हैं, सिंपल शुगर, कंपाउंड शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। आगे एक एक करके डील करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। हम अगेन इसे प्रीक एस्पेक्ट से लेते हुए चलेंगे एक एक करके। पहला टाइप ऑफ शुगर है या फिर कार्बोहाइड्रेट है सिंपल शुगर। इन्हें सिंपल शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक सिंगल शुगर यूनिट से बना है या फिर एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट से बना है। इस वजह से इसका एक और नाम भी है, इसे हम मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। तो सिंपल शुगर वो शुगर है जो एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट से बने या फिर मोनोसैकेराइड है। एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज, इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? ब्लड शुगर। ये खाने में मौजूद होता है और डाइजेशन के बाद ब्लड में पाया जाता है, इसी वजह से ब्लड शुगर। नेक्स्ट वन इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा? इट इज मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स, बेरीज एंड हनी। लास्ट वन इज गैलेक्टोज, डज नॉट ऑकर फ्रीली इन नेचर। ये नेचर में फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। कहाँ होता है? इट कंबाइंस विथ ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टोज। दैट मीन्स ये हमारे बॉडी में ही मौजूद है। ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाएगा और लैक्टोज बनाता है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। सो दीज आर योर 3 एग्जांपल्स ऑफ सिंपल शुगर। उनके सोर्सेज भी हम देख लेंगे। ब्लड शुगर, ग्लूकोज ब्लड में होता है। फ्रक्टोज ये कहाँ पाया जाएगा? फ्रूट, हनी, बेरीज में पाया जाएगा। गैलेक्टोज ये ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड शुगर। कंपाउंड शुगर का ऑल्टरनेट नेम्स क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स मौजूद, 2 शुगर यूनिट्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सुक्रोज जो कि शुगर केन और शुगर बीट में पाया जाता है, जो चीनी जिससे बनती है, ठीक वही चीनी में होता है सुक्रोज। नेक्स्ट, माल्टोज। माल्टोज कहाँ पाया जाएगा? जर्मिनेटिंग सीड्स, जैसे कि कॉर्न हो गया, मूंग दाल हो गया, जो हम भिगोते हैं, जो चना वगैरह जो भिगोते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें ये पाया जाता है, जर्मिनेटिंग शुगर। माल्टोज इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनेटिंग शुगर। कहाँ पाया जाएगा? जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है। फिर लैक्टोज है जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा? मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे दूध हो गया, दही ले लेते हैं, कर्ड या फिर चीज वगैरह हो गया, उसमें ये पाया जाता है। ठीक, दिस आर योर कंपाउंड शुगर्स। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। दैट मीन्स ये कितने शुगर यूनिट से बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ मेनी शुगर यूनिट्स या फिर पॉली शुगर यूनिट्स। जैसे कि डायग्राम में आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड। एग्जांपल इज ग्लूकोज ओवर हियर। यहाँ पे देखिएगा सुक्रोज, 2 कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ और एक यहाँ। 2 कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये बन गया है डाइसैकेराइड। और वहीं पे ये क्या है नीचे? ये है पॉलीसैकेराइड। मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आर प्रेजेंट। 2 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। एग्जाम्पल है सेल्यूलोज जो कि सेल वॉल के बाहर मौजूद है, और स्टार्च जो कि
पोटैटो वगैरह में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बाय द वे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूट के ही डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड बनती है। लास्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से क्या दिक्कतें होती हैं, क्या इश्यूज आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉडीज मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा भी था। विदाउट सफिशिएंट फ्यूल द बॉडी गेट्स नो एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी होगी नहीं, अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। Additionally, without sufficient glucose, the central nervous system suffers, which may cause dizziness or mental and physical weakness. तो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो नर्वस सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आना, फिजिकल और मेंटल वीकनेस वगैरह भी हो सकता है। उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज और लो ब्लड शुगर इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हमारी ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो जो कंडीशन उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, हैव अ गुड डे।